یہ ناول شروع کرنے سے پہلے اس کے کچھ حصے آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اور ایک کمال ماہین نے تو میرا پیچھا ہی لے لیا ہے، کہتی ہے مجھے اپنے گھر لے کر چلو، اس کی ماں کو سمجھاؤ یار کہ وہ اسے جہلم بھیج دے، اگر کسی نے دیکھ لیا یا پھر میری سسرال خبر پہنچ گئی تو بہت برا ہوگا۔ تم نے ہی تو اسے اپنے پیچھے لگایا ہے، اب کیوں دامن چھڑا رہے ہو؟ کیا حرج ہے، ایک سے منگنی دوسری سے نکاح۔ کمال نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ بابو جیسا گھر مکان تو میں تجھے نہیں دے سکتا، مگر دل کا پورا جہان تیرے نام کر دوں گا تو وہاں کی ملکہ ہوگی۔ چل اب اٹھ جا، شاباش۔ اس نے اس کا ہاتھ پیار سے تھاما تو وہ کھڑی ہو گئی۔ بڑا سا بیگ اس نے پلنگ کے نیچے سے کھینچا، اس میں شادی کے سارے کپڑے، چاچی کا دیا ہوا بھاری کام کا گرین سوٹ، جیولری باکس، سینڈل، چپل، بیوٹی باکس رکھ کر اس کی زپ بند کر دی۔ باقی برتن وغیرہ سودا لانے والے تھیلے میں رکھ لیے، حتیٰ کہ چائے، چینی، چاول، مسالہ اور گھی کے ڈبے، آٹا وغیرہ بھی تھیلے میں ٹھونس لیے۔ اس کے بعد اکبر نے الماری کھول کر اس کا جائزہ لیا۔ اس میں طارق کے 2-3 سوٹ ٹنگے نظر آئے۔ وہ ان کی طرف لپکا۔ السلام علیکم، ایک بہت ہی خوبصورت سا ناولٹ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے قربتیں کتنی۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر اس خوبصورت سے ناولٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ شادی کا گھر تھا، مہمان بھرے ہوئے تھے۔ اپنے قریبی عزیز اور شادی شدہ بہنیں جو دوسرے شہروں میں بیاہی تھیں ہفتہ بھر پہلے سے آ گئی تھیں۔ شیخ کرم الہی کا حویلی نما بڑا سا مکان چڑیا گھر کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ ہر سائز، ہر عمر کے بچے، لڑکے لڑکیوں کے شور کہکہوں سے کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ بزرگ خواتین کو پان چبانے اور چھالیاں پھانکنے کے علاوہ جیسے کوئی کام ہی نہ تھا۔ اوپر کے کمرے میں لڑکیاں ڈھولک جھانجرے لیے مبارکبادیاں گا رہی تھیں۔ کوئی چھوٹی لڑکی اچانک کھڑی ہو کر ناچنے لگتی، ایک دم ہنسی کا فوارہ اڑنے لگتا۔ ارے مومل، تم نے کیسا سوٹ بنوایا ہے مہندی والے دن کے لیے؟ ماریا نے اپنی کزن سے پوچھا۔ ہلکے سبز رنگ کا ہے، امی نے کام کے لیے بھیج دیا تھا، معلوم نہیں کیسا ہوگا، ایک دن درمیان میں ہے، ہو جائے گی تیاری۔ پھر منجلی آپا، بڑی آپا، چھوٹی آپا اور تائے جان کی تینوں بہوؤں نے زور و شور سے تیاریاں شروع کر دیں۔ طارق بھائی کی بیوی اسما کو تو جانو ابھی دلہناپا ہی تھا، صرف 2 سال شادی کو ہوئے تھے، 1 سال کی بچی تھی۔ ارمانوں بھرے دن، مرادوں کی راتیں تھیں، ان کی تیاری سب سے جدا تھی۔ ایک دن پہلے خالہ جان نے منہارن کو گھر بلوا کر ہاتھ بھر بھر سب کو مختلف رنگ اور ڈیزائن کی کامدار چوڑیاں پہنوائیں اور جوڑے الگ بندوائے۔ منہارن منہ مانگا انعام لے کر چلی گئی۔ تائے جان نے پہلے ہی سب کو منع کر دیا تھا کہ مہندی کی تقریب میں نہ گانوں کا مقابلہ ہوگا نہ کوئی ہلڑ بازی ہوگی، کیونکہ شارق کے سسرال والے بڑے مذہبی اور سادہ لوگ ہیں، وہ ان فروعات کو قطعی پسند نہیں کرتے۔ نئی رشتہ داری ہے، کوئی شکایت کا موقع نہ دینا۔ سب لوگ چپ ہو گئے۔ لڑکے لڑکیوں نے خاصا پروگرام بنایا تھا لڑکی والوں کو شکست دینے کا، سب کے دل بوجھ کے رہ گئے تھے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ واقعی بڑے لیے دیے رہنے والے تھے، پھر تو انہیں بھی مؤدب رہنا پڑا۔ بہاری کباب، پراٹھے، پھرنے کا اہتمام تھا۔ گرم گرم پراٹھے اتر رہے تھے، کھانا بہت اچھا تھا، کوئی بدمزگی ہوئی نہ دیر لگی اور انہیں جلد ہی فارغ کر دیا گیا۔ ایک دن آرام کا پھر مل گیا۔ طارق کی دلہن اسما بڑی پیاری اور معصوم تھی، دونوں بہت خوش تھے۔ بارات کا دن آ گیا، شارق کو دولہا بنایا گیا۔ سسرال سے اس کا کلا، پٹکا اور ہار آیا تھا۔ سب نے اطمینان کی سانس لی، کیونکہ شارق نے منع کر دیا تھا کہ میں صحرا نہیں باندھوں گا۔ اچھا بھلا زندہ انسان چلتا پھرتا مزار لگتا ہے۔ شارق کلا دیکھ کر خوش ہو گیا۔ بارات لال آزار پہنچی تو اس کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا، پھولوں کی پتیاں اور ہار ڈال کر پھر مووی بنی۔ بڑی ہما ہمی تھی، پرستان کا گما ہو رہا تھا، ہر طرف کہکہوں کا ترنم گونج رہا تھا۔ نکاح ہوا اور ہر طرف چھواروں کی لوٹ مار شروع ہو گئی۔ اس کے بعد آئس کریم کے پیپر گلاس ٹرے میں رکھ کر بیرا سرو کرنے لگا اور لوگ بڑھ چڑھ کر گلاسوں پر ہاتھ صاف کرنے لگے۔ جب کھانا رائج تھا، اس وقت بھی لوگ پلیٹوں میں مرغی کی ٹانگیں بھر بھر کر اس طرح کھا رہے تھے کہ جیسے وہ اپنی زندگی کا پہلا یا آخری کھانا کھا رہے ہوں۔ اور اب آئس کریم کے گلاسوں کا بھی یہی عالم تھا کہ بچے جیبوں میں ٹھونس رہے تھے، دونوں ہاتھوں میں پکڑے منہ مار رہے تھے۔ یا الہی، ان کے والدین بھی انہیں نہیں روک رہے تھے، یہ کیسا طریقہ تھا؟ اس تقریب میں چچا جان کی فیملی نے بھی شرکت کی تھی۔ چچا جان اب اس دنیا میں نہیں تھے۔
اور جائیداد کی تقسیم پر کچھ تنازعہ ہو گیا تھا اور ان کے درمیان پہلے جیسا خلوص اور رشتوں کا احترام نہیں رہا تھا۔ ویسے بھی چچی جان نہایت کینہ توس اور جیلس قسم کی تیز مزاج خاتون تھیں۔ انہوں نے کبھی اپنا حساب دوسروں پر نہیں چھوڑا تھا اور کسی نہ کسی موقع پر تایا جان اور ان کی اولادوں کو شرمندہ کرنے سے نہیں چوکتی تھیں۔ گویا یہ ان کے فرائض میں تھا کہ انہیں نیچا دکھانا ضروری تھا اور ہمیشہ وہ لوگ اس کھوج میں رہتی تھیں۔ یہ بات تو تایا جان اور ان کی اولادیں بھی جانتی تھیں، مگر مجبوری یہ تھی کہ شادی یا غمی کے موقع پر اپنوں کی شرکت لازمی تھی۔ تائی جان کے 4 بیٹوں میں یہ آخری بیٹا شادی کے لیے رہ گیا تھا، مگر تائی جان کے انتقال کی وجہ سے اب تک اس کی شادی ٹکتی رہی۔ اب تو ان کی برسی بھی ہو گئی اور بہن بھاوجوں نے شور مچا رکھا تھا کہ شاری کی شادی ہونی چاہیے۔ لڑکیاں دیکھی جانے لگیں۔ آخر ایک اچھے خاندان کی پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی نادیہ سب کو پسند آ گئی۔ رشتہ طے ہو گیا اور شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ آج اسٹیج پر بیٹھے دلہن اور دولہا سب کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ کتنا خوبصورت جوڑا تھا، اللہ نظر بد سے بچائے۔ موویز بن رہی تھی۔ اس نے آج اپنی شادی والا کم خواب کا آتشی غرارہ سوٹ پہنا تھا۔ پارلر سے دلہن کا میک اپ کرا کے آئی تھی، بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ طارق بھی اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں جھوم رہی تھیں۔ اتنے میں طارق کے دوست کمال نے آ کر اس کے کانوں میں جانے کیسی سرگوشی کی کہ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کے چہرے کی خوشی ایک دم کافور ہو گئی تھی۔ تایا جان کی بہویں، بیٹیاں، ان کی سسرال والیاں سب قریب قریب میزوں کے سامنے کرسیوں پر بیٹھی ہنسی مذاق کر رہی تھیں، کہے لگا رہی تھیں، ایک دوسرے کے کپڑوں میں کپل تبصرے کر رہی تھیں۔ اسما کی بہن بھاوج اور ماں بھی وہیں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھیں۔ اتنے میں چچی جان کی بڑی بیٹی ہما کسی سجی بنی لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالے آئی اور وہاں سب سے اس کا تعارف کرانے لگی۔ یہ ماہین ہے، طارق کی دوسری بیوی۔ میرج ہال میں اس کی بازگشت گونجنے لگی اور وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ اسما گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے سے لگتا ہے جیسے کسی نے خون کی بوند بوند نچوڑ لی ہو۔ آنکھوں میں وحشت بھر گئی۔ یہی حال اس کی ماں، بہن اور بھاوج کا تھا۔ طارق کی بھاوجیں، بہنیں حیرانی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ انہیں محسوس ہوا جیسے کہیں قریبی کوئی دھماکہ ہوا ہو۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا سوائے اس کے کہ آس پاس کہیں زلزلہ آیا تھا۔ اسما کے گھر کی دیواریں ہل گئی تھیں۔ دل کی بستی میں بڑا شور ہے، بڑی توڑ پھوڑ مچی ہے، اسے کیسے بچایا جائے؟ وہ سب کھڑی ہو گئیں اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی اس کے ہاتھ سہلا رہا تھا۔ اس نے 2 گھونٹ پانی پیا اور بڑی نند کے شانے پر سر رکھ کر بلک پڑی۔ اچھا ہے، رو لو، دل ہلکا ہو جائے گا۔ عرشی نے اسے لپٹا لیا۔ اس لمحے کی سنگینی نے اسے تڑپا دیا تھا۔ تم نے دیکھا بیٹی، اسما کی امی روحان سی ہو گئیں۔ تمہاری چچی کی بڑی بیٹی ہما نے کیا کہہ کر اس اجنبی لڑکی کا تعارف کرایا تھا؟ یہ کیسا مذاق تھا؟ طارق کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، میں اس سے پوچھوں تو صحیح، میرا کیا قصور تھا جس نے بھری محفل میں ہمیں بلا کر یوں ذلیل کیا؟ وہ اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ خالہ جان، آپ پریشان نہ ہوں، ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ آپ کیا، ہم خود اس سے پوچھیں گے، چھوڑیں گے تھوڑی۔ وہ ساری بہن بھاوجیں خود بھی شرمندہ تھیں۔ طارق کو ہر جگہ ڈھونڈا گیا، وہ نہیں ملا۔ ان لوگوں کو رہ رہ کر چچی جان اور ہما پر غصہ آ رہا تھا۔ یقیناً ان لوگوں نے کچھ سازش کی تھی۔ اسما کی امی نے کہا، ہماری سراسر توہین ہوئی ہے، اب میں یہاں نہیں ٹھہروں گی۔ اٹھو اسما، نرما اور دلہن، پہلے گھر جا کر چیزیں سمیٹنا ہے، پھر واپس چلے جائیں گے۔ اسما بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ انہوں نے دلہن کی رخصتی کا بھی انتظار نہیں کیا اور ٹیکسی پر گھر آ گئیں۔ طارق نسبتاً ایک تاریک گوشے میں بیٹھا کمال سے کہہ رہا تھا، یار کمال، تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ وہ کمبخت یہاں آ رہی ہے؟ اب میں کس کس کے سامنے صفائی پیش کروں گا، جبکہ جیتا جاگتا ثبوت چل کر خود ہی سامنے آ گیا تھا۔ اور اسے لانے ہماری ذلیل کرانے والی ہماری چچی جان اور ان کی بیٹیاں تھیں۔ ہماری عزت کا تو انہوں نے ذرا بھی پاس نہ کیا، کم سے کم شادی تو ہو جانے دیتی۔ طارق سخت گھبرایا ہوا تھا۔ یار، ہمیں تو یہاں آ کر معلوم ہوا کہ وہ آئی ہوئی ہے، تب میں تمہاری طرف دوڑا آیا ہوں۔ معلوم نہیں کیسے دلہن رخصت ہو کر گھر آئی۔ بڑے تایا کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ ان کے سپوت نے ایک کارنامہ انجام دیا ہے، جسے نہیں معلوم تھا اسے بھی معلوم ہو گیا۔ اسما کی والدہ، بھائی، بہن اور بھاوج سخت رف روکتا تھے۔ رخصتی ہوتے اور گھر آتے ہوئے 1 بج گیا تھا۔ لطف یہ تھا کہ ہما ماہین کو اپنے ساتھ لے کر آ گئیں اور اسے یہاں پہنچا کر چلی گئیں۔ طارق سب کے بعد گھر آیا اور اسما کو لے کر اوپر ٹیرس پہ چلا گیا۔
اسے کرسی پر بٹھا کر خود بھی سامنے بیٹھ گیا۔ اسما کی پیشانی پر بل پڑے ہوئے تھے۔ اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ اس کے بگڑے ہوئے تیور وہ سمجھ رہا تھا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ تیز لہجے میں بولی۔ خاموشی سے میری بات سنو اسما، اس کی آواز تھی۔ واہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ آپ مجھے غصہ دکھا رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں سخت بیزاری تھی۔ نہ میں نے چوری کی ہے، نہ تم کوتوال ہو، نہ میں غصہ دکھا رہا ہوں۔ دیکھو اسما، میں تمہارا شوہر ہوں، اور اللہ پاک نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہوں، مگر میں نے اس کی بخشی ہوئی رعایت سے قطعی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ محض ایک حادثہ تھا جو اچانک ماہین میری زندگی میں داخل ہو گئی۔ اس کی تفصیل میں تمہیں شاری کی شادی کے بعد بتانا چاہتا تھا، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی، اور وہ موقع آنے سے پہلے راز تشت ازبام ہو گیا۔ واہ، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ اب میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جذبات میں آ کر کوئی قدم غلط نہ اٹھا لینا۔ میری رسوائی تمہاری رسوائی، میری عزت تمہاری عزت ہے۔ میں اب کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ میری ماں، میرے گھر والوں کی بھی عزت کا سوال ہے۔ اتنے بڑے حال میں، سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں، جب آپ کی کزن نے اس کا تعارف آپ کی دوسری بیوی کی حیثیت سے کرایا، مجھ پہ تو آسمان ٹوٹ پڑا۔ ہر شخص کی سوالیہ نظریں مجھ پر، میری ماں بہنوں پر اٹھ رہی تھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آپ نے میرا بھرم ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ لوگوں کی چپتی نظروں سے میں پناہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ آخر میری ماں مجھے اپنے ساتھ لگائے باہر آ گئیں۔ میری بھاوج اور بہنوں نے یک زبان کہہ دیا، امی اب یہ وہاں نہیں رہے گی، ہمارے ساتھ جائے گی۔ میں جب اپنے خواب گاہ میں داخل ہوئی تو ماہین بڑے آرام سے لیٹی ہما آپی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میرا دل خون ہو گیا۔ میں الٹے قدموں واپس آ گئی۔ کیا آپ اب بھی یہی کہیں گی کہ زہر کا یہ پیالہ شہد کے گھونٹ کی طرح خاموشی سے پی جاؤں اور کچھ نہ بولوں؟ غلط قدم کس نے اٹھایا، میں نے یا آپ نے؟ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ میرا اتنا بڑا دل نہیں کہ میں سوکن کو برداشت کر سکوں۔ فی الحال میں منظر سے ہٹ رہی ہوں۔ اب ان تمام باتوں کا جواب آپ میری ماں اور بڑے بھیا کو دیجیے گا۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ مڑ کر جانے لگی۔ طارق نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسما پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میں اسے یہاں سے بھیج دوں گا، اب وہ دوبارہ یہاں نہیں آئے گی۔ اپنا گھر برباد نہ کرو، میں تمہاری اور بیبی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے لہجے میں بڑی بے بسی تھی۔ ایک ہارا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اسما کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ وہ جلدی سے ہاتھ چھڑا کر نیچے آ گئی اور آنسوں نے یلغار کر دی۔ دل کہہ رہا تھا مت جا، اسے چھوڑ کر وہ ٹوٹ جائے گا۔ دماغ کہہ رہا تھا نہیں، اسے بھی تو اپنی منمانی کرنے کی کچھ سزا ملے۔ اب عورت اتنی بھی کمزور نہیں۔ آخری سیڑھی پر رک کر اس نے اپنے آنسو پوچھے، برقع اوڑھا۔ گیٹ پر اس کی ماں، بہنیں اور بھاوج ٹیکسی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ چند قدم چلی تھی کہ سسر مل گئے۔ ان کی گود میں بچی تھی۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بولے، دلہن، میں تمہیں جانے سے نہیں روکوں گا، تمہیں احتجاج کا حق ہے، مگر شادی کا ولیمہ تو ہو جانے دیتی۔ شادی کا گھر ہے، ہر شخص تمہیں پوچھے گا۔ صبح یہاں سے چلی گئی ہے، طارق اسے اسٹاپ تک چھوڑ آیا ہے۔ اپنا گھر بچانا یا توڑنا اب تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ واقعہ کوئی نیا اور انوکھا نہیں ہے۔ مرد عموماً ایسی حماقتیں کرتے رہتے ہیں۔ بس اتنا یاد رکھنا، اس گھر کی بہو تم ہو، ماہین نہیں۔ انہوں نے بچی کو اس کی گود میں دیا اور اوپر چلے گئے، اور اسما خاموشی سے جا کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ وہ ہزاروں مربع گز پر پھیلا ہوا ایک مل ایریا تھا، جہاں بہت سے چھوٹے بڑے کارخانے اور فیکٹریاں تھیں۔ کلرکوں، افسروں اور مزدوروں کی کثیر تعداد مختلف کارخانوں اور فیکٹریوں میں کام کرتی تھی۔ ملوں سے ملحق ان کے اندر سرونٹ کوارٹرز تھے، جن میں ملوں کے چوکیدار، مالی، کچھ مزدوروں کی فیملیاں رہتی تھیں۔ مل کے کچھ دور مزدوروں کی جھونپڑیاں اور چھوٹا سے کچا بازار بھی تھا، جہاں لکڑی کے کیبن اور چھابڑی والے تھے۔ انہی جھونپڑیوں میں ایک کاغذ چننے والی بشیرہ اپنے متکوک شوہر اور ایک جوان بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ بشیرہ تو کاغذ چننے چلی جاتی تھی اور بیٹی جھونپڑی کی صفائی کرتی، کھانا پکاتی، اپنے بیمار باپ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ وہ ایک قبول صورت گندمی رنگت کی چلبلی لڑکی تھی۔ اس کا دل تنہائی سے گھبراتا تو باہر نکل جاتی۔ طارق کاٹن مل میں سپروائزر تھا۔ ایک دن اس کی موڑ بھیڑ لڑکی سے ہو گئی۔ کچی عمر، اس پر ذرا درست تیار، ڈھنگ کے کپڑے پہنے، لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ طارق کے ساتھ اس کا دوست کمال بھی تھا۔ وہ بھی اسی مل میں کام کرتا تھا اور بشیرہ کو جانتا تھا۔ اوئے، کہاں منہ اٹھائے چلی جا رہی ہے؟ جا اپنے گھر۔ وہ لڑکی رک گئی، کمال کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ وہ بھی کمال کو جانتی تھی۔ طارق کو اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔
खूबसूरत सा लंबे कद का नौजवान सियाह पैंट और सफ़ेद शर्ट में इसे बहुत अच्छा लगा, बल्कि पूरे का पूरा इसके अंदर उतरता चला गया। यकटक उसे देखे गई। क्या देख रही है? मेरा दोस्त है, इसी मिल में अफसर लगा है, कहीं नज़र ना लगा देना। अब दोनों इसके करीब पहुंच गए। ये लड़की कौन है कमाल? ये बशीरा की लड़की है। माँ इसकी कागज़ चुनने जाती है, बाप बीमार है। बशीरा की कमाई पर इसका घर चलता है। अब तक इसे देखे जा रही थी, मगर ये मकामी तो नहीं मालूम होती। तारिक ने पूछा। हाँ, इसकी माँ जेहलम से आई थी अपने शौहर के साथ यहाँ रोज़ी के सिलसिले में। लड़की को अपनी माँ के पास छोड़ आई थी। यहाँ आकर इसका शौहर मनशियात फरोशों के चक्करों में पड़ गया। कुछ दिन तो पैसे लाकर बशीरा को देता रहा, फिर हीरोइन बेचते बेचते खुद भी हीरोइन पीने लगा। बेचारी बशीरा क्या करती, कागज़ चुनने वाली औरतों के साथ लग गई और बेटी को बुलवा लिया था कि घर और बाप की देखभाल कर सके। हीरोइन ने इसे कहीं का नहीं रखा था, सोकर कांटा हो गया। तब से यहाँ है, कभी तन्हाई से घबराकर बाहर निकल आती है। क्या नाम है तुम्हारा? तारिक पहली बार इससे मुखातिब हुआ था। वो खिल उठी। मेरा नाम जी माहीन है। वो मुस्कुराई। ओहो, नाम तो पढ़े लिखे ख़ानदानी लोगों जैसा है। जी मैं भी पढ़ी लिखी ख़ानदानी लड़की हूँ, इसने कुछ इठला कर कहा। अच्छा। तारिक को अब इससे बातें करने में मज़ा आने लगा। कितना पढ़ा है तुमने? और तुम्हारे ख़ानदान के लोग क्या करते हैं? मैंने स्कूल में 6 क्लास तक पढ़ा है। मेरे नाना की आटे दाल की दुकान है। मेरा मामू बिजली का काम करता है। मेरा चाचा दूध बेचता है। मेरी मामी कालीन के कारखाने में काम करती है। और बस बस। तारिक ने मुस्कुराकर हाथ के इशारे से इसको रोक दिया। तुम वाकई पढ़ी लिखी ख़ानदानी लड़की हो। पूरा शजरा मालूम हो गया तुम्हारा। कमाल ने कहकहा लगाया और दोनों आगे बढ़ गए। बड़ी बेवकूफ़ लड़की है। 6 क्लास पढ़कर समझती है PhD कर लिया है। अभी इसे शहर की हवा नहीं लगी है। कमाल ने कहा और पीछे मुड़कर देखा। वो अभी तक वहीं खड़ी थी। कमाल ने इसे जाने का इशारा किया और वह नाक की सीध में दौड़ती चली गई। तारिक मुस्कुराता रहा। मैंने तो बशीरा से कहा था कि इसे वापस जेहलम भेज दे, कमाल ने कहा। खुदा ना करे जो यहाँ किसी जाल में फंस गई तो रोती फिरेगी, मगर वो क्या करे? फिर इसके बीमार शौहर को कौन देखेगा? अगर वो घर बैठ जाती है चूल्हा ठंडा हो जाता है। कमाल बातें करता मिल के गेट पर पहुँच गया। अब अक्सर तारिक जब भी खाने के बाद टहलने निकलता, माहीन इसके इंतज़ार में खड़ी हुई मिलती। कमाल रुक जाता। यार, मालूम होता है ख़ानदानी पढ़ी लिखी लड़की तुम्हारा इंतज़ार करती है। मैं जा रहा हूँ, तुम बात कर लो, मगर ज़रा दामन बचा कर। कमाल मुस्कुराता हुआ चला गया। अभी तारिक सोच ही रहा था कि जाए या ना जाए। इसके पहलू से आवाज़ आई। क्या सोच रहे हो बाबू? और वो उछल पड़ा। इसने मुस्कुरा कर कहा। क्या डर गए? नहीं। तुम यहाँ क्यों खड़ी थी? और आप क्यों खड़े थे यहाँ? उल्टा इसने सवाल कर दिया। मैं तो रोज़ ही दोपहर का खाना खाने के बाद टहलता हुआ इधर से गुजरता हूँ। इससे पहले मैंने तुम्हें नहीं देखा। हाँ बाबू, मैंने भी आपको इससे पहले यहाँ नहीं देखा था, इसीलिए रास्ते में आकर खड़ी हो जाती हूँ। मेरा दिल आपसे ढेर सारी बातें करने को चाहता है। कैसी बातें? बस अपनी और आपकी बातें। वह हंसने लगी। अच्छा तो करो। क्या कहना चाहती हो? मुझे वापस भी जाना है। मैं आपको कैसी लगती हूँ तारिक बाबू? इसने शर्माई शर्माई नज़रों से इसको देखा। बस ठीक ठाक लगती हो। वो मुस्कुराया। यानी अच्छी नहीं लगती? इसका मुंह लटक गया। भाई, ठीक ठाक का मतलब तो अच्छा ही हुआ ना। वो हंस पड़ा। फिर आप मुझसे शादी कर लें, इसने बगैर झिझक के कह दिया और तारिक सन्नाटे में आ गया। पागल हो गई हो क्या? शादियाँ कहीं इस तरह होती हैं, चलते फिरते? मेरी तो मंगनी हो गई है। अगर मैंने इनकार किया तो मेरे घर और ससुराल वाले मेरे हाथ पांव तोड़कर कोने में डाल देंगे, और मैं कतई अपाहज होना नहीं चाहता। वैसे भी हमारे तुम्हारे ख़ानदान के रहन सहन रस्म और रिवाज में बहुत फ़र्क है। हमारे ख़ानदान में तुम्हारी जगह निकालना मुश्किल है। आप मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह दे दें, ख़ानदान में जगह मैं ख़ुद बना लूँगी। नहीं, हमारा ख़ानदान तुम्हें कबूल नहीं करेगा। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। अब जब भी वो टहलने निकलता, इसे अपना मुंतज़िर पाता। लाख वो इससे कतरा कर निकलना चाहता, मगर वो निकल ना पाता। तारिक महज इसका दिल रखने के लिए कुछ देर इससे बातें कर लेता। दरअसल वो बेहद नर्म खो और बामुरव्वत इंसान था। किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता था। क्या हर्ज था अगर वो इससे मिलकर इसकी बातें सुन लेता है। तारिक बाबू, माँ मुझे जेहलम नानी के पास भेजना चाहती है। मैं नहीं जाऊँगी। क्यों? ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ क्या रखा है? टूटी फूटी झोंपड़ी, ना ढंग का खाना, ना ढंग का कपड़ा।
वहाँ तुम्हारे नाना नानी, मामू और मुमानी और बच्चे हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, तुम ही तो कहती हो मामू मुमानी तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। बच्चों के साथ तुम खेलती हो। माँ तुम्हें यहाँ उजाड़ वीरान जगह ले आई है, अब क्या बात हो गई? वहाँ मेरा मामू मेरे नाना की उम्र के आदमी से मेरी शादी करना चाहता है। माहीन ने मुंह बसोर कर कहा। कैसा है वो आदमी? पैसे वाला है? हाँ, पैसा तो बहुत है, मकान भी बहुत बड़ा है। अपने सफ़ेद बालों मूँछों पर काला रंग लगाता है तो वो बिल्कुल जवानों की तरह अकड़ अकड़ के चलता है। काला रंग? तारिक हंस पड़ा। बेवकूफ़, खजाब लगाता है, जिसे अंग्रेज़ी में पॉली कलर कहते हैं। तुमने अंग्रेज़ी पढ़ी है? सिर्फ ABCD तक पढ़ी है। वो खिलखिला कर हंस पड़ी। अच्छा, जब वो बालों में रंग लगाता है तो जवान लगता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा। तो क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा तो वो जवान है ना, तुम्हें बहुत आराम से रखेगा। तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े और जेवर बनाएगा। नौकर चाकर आगे पीछे होंगे, तुम चौधरानी कहलाओगी। सब लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। तुम्हारी बिरादरी की किसी लड़की के पास इतने जेवर कपड़े नहीं होंगे। बच्चों की तरह इसे बहला रहा था। मुझे नहीं चाहिए अच्छे कपड़े और जेवर। एकदम हत्थे से उखड़ गई। अगर माँ ने मुझे ज़बरदस्ती जेहलम भेजा, दरियाए जेहलम में छलांग लगा दूंगी। वो सिसकियाँ लेने लगी। घबरा क्या वो? देखो माहीन, अपने आंसू पोंछ लो, रोना बंद करो, वरना मैं फिर इधर आना छोड़ दूंगा। इसने दोनों हथेलियों से अपने आंसू पोंछ लिए। अच्छा, तो फिर मुझे अपने घर ले चलोगे? अरे क्यों, मुझे जूते लगवाओगी? मेरे घर वाले बड़े टेढ़े लोग हैं। वो खड़ा हो गया। अब तुम जाओ। अरे कमाल, माहीन ने तो मेरा पीछा ही ले लिया है। कहती है मुझे अपने घर लेकर चलो। इसकी माँ को समझाओ कि वो इसे जेहलम भेज दे। अगर किसी ने देख लिया या फिर मेरी ससुराल खबर पहुँच गई तो बहुत बुरा होगा। तुम नहीं तो इसे अपने पीछे लगाया, अब क्यों दामन छुड़ा रहे हो? क्या हर्ज है, एक से मंगनी दूसरी से निकाह। कमाल ने हंसते हुए इसे छेड़ा। अरे नहीं, ये तो देखो किस तबके की लड़की है। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और घर वाले मुझे उल्टा लटका देंगे। नहीं तारिक, लड़की का कोई तबका नहीं होता। सारी लड़कियां मासूम, भोली भाली और टूट कर मोहब्बत करने वाली होती हैं। लगता है माहीन तुमसे मोहब्बत करने लगी है। इसने तो माँ से भी कह दिया कि मेरी शादी तारिक बाबू से कर दो। हाय, क्या? घबरा कर इसकी तरफ देखने लगा। हाँ तारिक, एक दिन इसकी माँ मुझे मिली थी। कह रही थी कि माहीन किसी तारिक बाबू से शादी करने को कहती है। बेटा ज़रा पता लगाना, मैं तो सारा दिन रोज़ी की तलाश में भटकती रहती हूँ। वो जाने कहाँ कहाँ की खबर लाती है। इसने मुझे परेशान कर दिया है। तारिक को तशवीश ने घेर लिया। फिर इसने दफ्तर से छुट्टी ले ली और कई दिन तक मिल नहीं आया। मगर वो सोचने लगा कि कहीं माहीन इसे ढूंढती हुई मिल के अंदर ना चली जाए। कमाल से भी इसने पूछा होगा, कई माह हो गए थे इससे मिलते हुए। इसने अपने दिल को टटोला तो इसे भी वहाँ तिश्नगी महसूस हुई। एक दिन कमाल का फ़ोन मिला। यार तुम चले गए वो बला मेरे सर डाल के। इसने रो रो कर मेरी जान खा ली है कि मुझे तारिक बाबू का पता दे दे, मैं खुद इन्हें ढूंढ लूँगी। इसकी माँ बहुत परेशान है इसकी वजह से। अरे खुदा के लिए कमाल, इसे मेरा पता ना दे देना, वरना समझ लो मेरी खैरियत नहीं है। परसों मैं आ रहा हूँ। इसने फ़ोन रख दिया और सर पकड़ कर बैठ गया। जब तीसरे दिन ऑफिस पहुँचा, दोनों खाने के बाद बाहर निकले तो वो सर झाड़ मुँह फाड़ अजीब हुलिया में दरख्त के नीचे बैठी हुई थी। तारिक को अफसोस होने लगा। वो इसे देखकर खड़ी हो गई। बाबू कहाँ चले गए थे? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बस मेरा जी ख़राब हो गया। अच्छा अच्छा, जाकर अपना हुलिया दुरुस्त कर, नहा धोकर तब बात करना। फिर आओगे बाबू ना? हाँ आऊँगा। फिर वो हंसता हुआ चला गया। माहीन भी खुशी से जकान भरती अपनी झोंपड़ी में चली गई। माँ इसे हैरानी से मुस्कुराते हुए देखने लगी। माँ, बाबू? वो कुछ ना समझी। अरे वही तारिक बाबू। ओह अच्छा। वो भी मुतमईन सी हो गई। इसके बाद तो जैसे वो आसमानों पर उड़ने लगी। हर दम बनी संवरी, साफ़ सुथरे कपड़े, कंघी चोटी, आँखों में काजल। कबूल सूरत तो थी, अब और अच्छी लगने लगी। फिर एक दिन पता चला कि बशीरा का शौहर फौत हो गया। अब वो बिल्कुल तन्हा रह गई थी। तारिक कमाल के साथ इसके घर ताज़ियत के लिए गया तो इसकी माँ इसके कदमों में बैठकर रोने लगी। तारिक ने जल्दी से पाँव समेट लिए। कमाल ने इसे पकड़कर टूटे फूटे तख्त पर बिठा दिया। मुझे बहुत अफसोस है अम्मा कि तुम्हारा शौहर फौत हो गया। तारिक और कमाल दोनों ने कहा। अरे पुत्तर, इसे तो मर ही जाना था। सबसे बड़ा गम इस धी का है जो कहती है मैं जेहलम नहीं जाऊंगी। अब हमारा यहाँ कौन है? बाबू इसे समझा। फिर दो बोल निकाह के पढ़ा कर ले जा।
खिदमत करेगी, 2 रोटी खा लेगी, मेरी फ़िक्र दूर हो जाएगी कि मेरी धी को एक छत मिल गई है, मैं सुख से मर सकूँगी। इसने तारिक के आगे हाथ जोड़ दिए। वो घबराकर कमाल की तरफ देखने लगा। कमाल चुप रहा तो तारिक ने कहा, अम्मा ये बड़ा मुश्किल काम है, मेरी मंगनी हो चुकी है, मैं इसके साथ निकाह कैसे कर लूँ? कहाँ ले जाकर रखूँगा? मेरा साला मुझे शूट कर देगा, लोग क्या कहेंगे? जाने कहाँ से किसकी लड़की उठा लाया, पुलिस केस बन जाएगा। पुत्र, हम भी कोई कमी कमीन लोग नहीं हैं, बस गुरबत ने मार दिया। बाप भाई दुकानदारी करते हैं। मेरी शादी चाचा के बेटे से हो गई, मगर वो मत कमाऊ निकला। चाचा गांव का हारी है। इसने बेटे से कहा, हमारे साथ मिलकर काम करो, मगर वो सदा का हट हराम था। ज़िद करके कराची आ गया, मगर मैं यहाँ बड़ी नौकरी करूँगा। अपनी बच्ची को माँ के पास छोड़कर चली आई। वो यहाँ हीरोइन के चक्कर में पड़ गया, फिर खुद भी हीरोइनची बन गया। मैं क्या करती? पढ़ी लिखी नहीं भी थी, ना कोई हुनर जानती थी। एक माई ने तरस खाते मुझे अपने साथ कागज़ चुनने पर लगा लिया। इतना हुआ कि दाल रोटी का सहारा हो गया। तब मैंने इस जन्म जली को बुलवा लिया। बीमार बाप और घर को ही संभाल लेगी, पर क्या जानती थी कमबख्त झोंपड़ी में रहकर महलों के ख्वाब देखने लगेगी। मैं बेवा गरीब औरत कहाँ जाऊँ इस जवान जिंदा लाशे को लेकर? वो फिर धुआंधार रोने लगी। अच्छा अम्मा रो मत, कमाल ने कहा, हम कुछ सोचते हैं। दोनों वहाँ से निकल गए। किसी का बोझ उठा लेना वैसे ही सवाब है, फिर किसी यतीम बच्ची के सर पे हाथ रखना, इसे तहफ़्फ़ुज़ देना ऐन इबादत है। अच्छी भली जन्नत को क्यों ठुकरा रहे? कमाल ने तारिक को समझाया। तो मुझे समझा रहा है, खुद क्यों नहीं इस यतीम के सर पे हाथ रख देता है? तारिक भड़क उठा। यार मेरी तो पहली 2 बीवियाँ मौजूद हैं, अब अगर तीसरी कर ली दोनों मुझे ज़िंदा ही गाड़ आएंगी जाकर कब्र में। कमाल हंस पड़ा। अरे वाह, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। 2 बीवियाँ, ये कैसे हुआ? तारिक को बड़ी हैरत हुई। यार होना क्या था, कमाल ने मुख्तसरन बताया। चचा का इसरार था कि कमाल मेरा दामाद बनेगा, और मामू जान खम ठोंक कर आके ये कैसे हो सकता है? कमाल तो मेरी बहन का बेटा है, पहला हक तो हमारा है, वो मेरा दामाद बनेगा। कमाल मुस्कुरा कर चुप हो गया। फिर क्या हुआ, जल्दी बताओ। तारिक ने इसे टहोका दिया। फिर कुछ हिमायती चचा की निकाल आए, कुछ मामू जान के, लाठी डंडों से लेस। बहुत मुमकिन था कि डंडों और लाठियों के अलावा गोलियां भी चल जाती कि मैं मैदान में कूद पड़ा और सफ़ेद रुमाल हिला दिया। सब अपनी अपनी जगह खामोश हो गए। मैंने कहा, बुज़ुर्गों, मैं किसी को मायूस नहीं करूँगा। आप लोग काजी को बुला लें, हम अभी दोनों से निकाह पढ़वाई लेते हैं, दोनों के दामाद बन जाते हैं, फिर तो कोई झगड़ा नहीं रहेगा ना। सब लोग हक्का बक्का से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सबकी सीटी गुम थी। माहौल में एकदम सन्नाटा छा गया। अजीब बात थी, अंदर से कहकहों और हंसी बातों की चहकार गूंज रही थी। मुझे अंदर बुला लिया गया। मैं हैरत से अपनी जगह जम के रह गया जब मैंने चची और मोमानी जान को एक दूसरे से गले मिलते, हंसते मुस्कुराते, मुबारकबाद देते हुए देखा। चल बेटा, सारा झगड़ा ही ख़त्म हो गया। अम्मी ने मुझे अपने से लगाते हुए कहा, मैं तुझे इतना अक्लमंद नहीं समझती थी। तूने चचा मामू दोनों का मान रख लिया। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। और मैं कुर्सी पर ढह सा गया। कामी, ये तूने क्या कर दिया? मेरे दिल ने सिसकी भरी। हाय, मेरे दिमाग ने मुझे कौन सा रास्ता दिखा दिया। मुझे तसव्वुर में शहनीला और फरजाना के हाथों में बेलन और कपड़े कूटने वाला डंडा नज़र आने लगा, और मैंने घबरा कर अपनी दोनों आंखें ज़ोर से बंद कर लीं। दोनों के बेतहाशा कहके कमरे में गूंजने लगे। कमाल ने कहा, मगर यार कभी इसकी नौबत ही नहीं आई। दोनों बड़े सलूक से रहती हैं और बहुत खुश हैं। तारिक का मुँह हैरत से खोल गया। क्या इनमें लड़ाई नहीं होती? खैर थोड़ी बहुत कभी हो जाती है, महज बच्चों की वजह से, खुद ही ठीक भी हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे को शौकन नहीं समझती। उन्होंने अपने वालिदैन की बात को नीचा नहीं होने दिया, उनकी इज्जत रख ली, और वो जो कुछ चाहते थे वही किया। उनकी ज़िद पूरी हो गई। तारिक बहुत हैरान था इस ड्रामाई वाक़े से। शायद ईसार का ये भी एक अंदाज़ था। दोनों का पल्ला भारी रहा। हाँ तारिक, कम से कम मुझे ही फ़ायदा हुआ कि घर में जंग नहीं होती, इसलिए मैं दोनों को खुश रखने की कोशिश करता हूँ। मगर मेरा मसला तो दूसरा है कमाल। हमारी मंगनी को 3 साल हुए, हम एक दूसरे का ख्वाब हैं। अब शादी होने वाली है। अगर अस्मा को ज़रा भी शुबा हो जाए तो वो जान दे देगी, मैं भी ज़िंदा नहीं रहूँगा। अरे 20वीं सदी के लैला मजनू। कमाल ने इसे एक धप लगाई। अरे तुम माहीन को मिलके क्वार्टर में रखना, और अस्मा तुम्हारे घर पहली बीवी की हैसियत से रहेगी। फिर झगड़ा क्या? हाँ, किसी मुनासिब मौका पर अस्मा को एतमाद में लेकर बता देना कि तुमने ये हिमाकत कर ली है।
बस थोड़ा नाराज़ होगी, फिर मना लेना। बीवी को मनाना क्या मुश्किल है, कमाल ने हंस कर कहा। फिर 4 दोस्तों की मौजूदगी में नाहिद सादगी से दोनों का निकाह हो गया। उनका सरकारी छोटा सा क्वार्टर दोनों का हुजरा रूसी बना। दूसरे दिन बशीरा अपनी झोंपड़ी माँ छोटे मोटे सामान के बेचकर जेहलम चली गई। 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर तारिक ने इसी क्वार्टर में माह सल्फ मनाया। घर में कह दिया कि दफ्तर के काम से लाहौर जा रहा हूँ। शादी के बाद तो माही निखर गई, पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई। तारिक को अच्छी लगने लगी। क्वार्टर में कुछ ज़रूरी सामान पहले ही लाकर रख दिया था। पलंग, बिस्तर, अलमारी, कुछ बर्तन। 4-5 सूट बुटीक से ख़रीद लाया था। कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चप्पल, कुछ मेकअप की चीज़ें, सेंट वगैरह। अब माहीन हर दम 16 सिंगार किए रहती। इसे तो जैसे बादशाहत मिल गई थी। वो इसके लिए खाना पकाती, घर की सफाई सुथराई करती, शौहर के लाड उठाती और तारिक माहीन के नाज उठाता। फिर 1 हफ्ता ख़त्म होती वो घर चला गया। अब तारिक दोपहर में कैंटीन के बजाय माहीन के हाथ का तैयार किया हुआ खाना खाता, चाय पीता, घंटा 2 घंटा आराम करता और दफ्तर चला जाता। फिर ऑफिस से घर सिर्फ दोपहर के चंद घंटे माहीन के साथ गुजरते थे। फिर भी कोई शिकायत नहीं थी। 6 माह बाद तारिक की शादी हो गई। अब इसके लिए वक्त निकालना मुश्किल था। कुछ दिन तो इसके अपनी शादी के हंगामों में गुजर गए। फिर अजीज़ों दोस्तों में दावतों का सिलसिला शुरू हो गया। माहीन घबराई घबराई फिरी। मिल के चौकीदार की बीवी इसके दोस्त बन गई थी। कभी वो आ जाती, कभी माहीन चली जाती। रात को अलबत्ता वो अपने कमरे और क्वार्टर में ताला लगा लेती थी। तारिक ने इसे यही हदायत की थी, मगर रातें माहीन की वीरान हो गई थी। फिर वो ऑफिस आने लगा और इसका पहला जैसा रूटीन बन गया। माहीन ने ज़िद शुरू कर दी, मुझे अपने घर लेकर चलो। मैं तुम्हारी माँ के हाथ पाँव जोड़ूंगी, उन्हें मना लूँगी कि वो मुझे अपने पास रख लें। सारे घर का काम करूँगी, तुम्हारी बीवी की खिदमत करूँगी, मगर मैं तन्हा नहीं रहूँगी, मुझे डर लगता है। उस दिन वो बहुत रोई। तारिक सख्त परेशान था। इसने कमाल को पकड़ा। देखा, मैं ना कहता था 2 कश्तियों में पाँव रख दिया है, सवाए डूबने की और कोई सूरत नज़र नहीं आती। इसे आकर समझाओ कि वो घर जाने की ज़िद ना करे। मैं किसी कीमत पर ऐसा नहीं कर सकता। कमाल आया और इसने माहीन को समझाने की कोशिश की तो इसने रोना शुरू कर दिया। कमाल चुपचाप चला गया। फिर खुदा ने अस्मा को एक प्यारी सी बेटी थी, इसने माहीन को बताया तो बहुत खुश हुई। बोली, मैं जाकर इसे देखा हूँ, तुम्हारी बेटी है तो मेरी भी तो हुई। मेरा जी चाहता है इसे गोद में लेकर खूब प्यार करूँ। मुझे ले चलो, कह देना मेरे दोस्त की बीवी है। पागलपन की बातें ना करो। वो चीख पड़ा, तुम वहाँ नहीं जाओगी। एक बार कह दिया, मुझे तंग ना करो। तुम डरते हो मुझे सबके सामने अपनी बीवी कहने से। बुज़दिल हो ना मैं डरता हूँ ना बुज़दिल हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी में चोर दरवाजे से दाखिल हुई हो। अस्मा के हक़ पर तुमने डाका डाला है, क्योंकि मेरी मंगनी हो चुकी थी। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मगर तुम्हारी ज़िद और रोने धोने पर मजबूरन मुझे एक कदम उठाना पड़ा। अब मैं शर्मसार हूँ। मेरे पास दूसरी शादी का कोई जवाज़ नहीं है। इसे अपनी गलती का शदीद एहसास हो रहा था। तो फिर मुझे गोली मार दो या मेरा गला घोंट दो, तुम्हें निजात मिल जाएगी। वो रोने लगी और अपना सर दीवार से टकरा दिया। इसके पेशानी से खून की धार बहने लगी। तारिक बदहवास हो गया। इसने इसका दुपट्टा खींचकर पेशानी पर दबा दिया। बड़ी मुश्किल से खून बंद हुआ। डेटॉल लगाकर पट्टी बांध दी। क्या मुझे मरवाओगी? क्या चाहती हो? ये क्या हरकत थी तुम्हारी? बोलो। वो गुस्से से चीख पड़ा। मैं नहीं जानती, मुझे अकेले डर लगता है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकता। तुम जेहलम चली जाओ अपनी माँ के पास। मैं तुम्हें खर्च भेजता रहूँगा, फिर मैं तुम्हें बुला लूँगा। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। फिर तुम बिल्कुल भूल जाओगे। अगर ज़बरदस्ती करोगे तो मैं दरियाई जेहलम में डूब मरूँगी। फिर रोने लगी। ये ब्लैकमेलिंग बंद करो, बहुत देखे हैं मरने वाले। वो गुस्से में ज़ोर से दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। उस दिन वो बहुत परेशान था, ये सोचकर कहीं ये राज खुल ना जाए। फिर क्या होगा? मगर वो राज ही क्या जो राज रहे। इसे तो एक ना एक दिन खुलना होता है। तारिक का कज़न भी वहाँ मिल में काम करता था। एक दिन इसने तारिक को मिल के ओका में क्वार्टर से निकलते देख लिया। वो ज़रा खोजी किस्म का लड़का था। तारिक के जाते दरवाज़ा खटखटाने लगा। माहीन ने दरवाज़ा खोल दिया। तारिक भाई हैं? नहीं, अभी ऑफिस के लिए निकले हैं। मैं उनका चचाजाद भाई शहजाद हूँ। पानी पिलाएंगी आप? वो मुस्कुराया। हाँ हाँ, बैठो।
माहीन ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। खुद कूलर से पानी निकालने लगी। शहजाद ने एक ही नज़र में पूरा जायज़ा ले लिया। एक कमरा, एक छोटा सा लाउंज, किचन, बाथरूम और ये छोटा सा साफ़ सुथरा घर, इसमें खूबसूरत लड़की। शहजाद का माथा ठनका। आप हमारी भाभी हैं ना? गिलास वापस करते हुए इसने पूछा। हाँ हाँ, मैं तारिक की बीवी हूँ। ये क्वार्टर इनका है। अरे वाह, हमें तो ख़बर भी ना हुई। कब की तारिक भाई ने आपसे शादी? 1 साल हुआ या फिर कुछ ज़्यादा हुए हैं? वो हंस पड़ी। फिर आप घर क्यों नहीं आई? वो मुझे लेकर नहीं जाते। मैंने तो कितनी बार कहा। वो कुछ उदास हो गई। तारिक भाई अगर अपने घर आपको लेकर नहीं जाते तो किसी दिन आप हमारे घर चलिए। हमारी आपी, बाजी और अम्मी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। अच्छा, वो खुश हो गई। फिर मैं किसी दिन तारिक से पूछ कर चलूँगी तुम्हारे साथ। तुम आओगे ना? मैं तो आ जाऊँगा। तारिक भाई को बिल्कुल कुछ ना बताना। इतवार की छुट्टी में तो तारिक भाई अपने घर होते हैं। मैं इतवार को आकर आपको अपने घर ले जाऊँगा और शाम को पहुँचा दूँगा। इसने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो खुश हो गई। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, कुंडी लगा लें। मेरा जिक्र तारिक भाई से ना कीजिएगा। इस तरह ये राज अपनी कदरों कीमत खोता गया। वादे के मुताबिक इतवार को वो आकर माहीन को अपने साथ ले गया। तारिक ने माहीन को बुर्का ख़रीद दिया था कि अगर कभी बाहर जाना तो बुर्का ओढ़ कर जाना। चुनांचे उसने बुर्का ओढ़ कर ही घर से कदम निकाला। तारिक की चची, सारी कज़न्स ने इसका पुरजोश खैर मकदम किया। चची ने इसे गले से लगा लिया। माहीन पहली बार अपनी ससुराल के लोगों से मिल रही थी। इसे बहुत अच्छा लग रहा था। बड़ी आपी और चची ने इससे खलूस जिता जिता कर सारे वाक़यात पूछ लिए थे और इस बेवकूफ़ लड़की ने अपनी पहली मुलाकात से लेकर शादी तक की सारी बातें इन्हें सुना डाली थी। खूब कह लग रहे थे। बार बार इसे अपने से लगाकर प्यार कर रही थी। हाय, कितनी मासूम, कितनी भोली बच्ची है। तारिक ने इसे कैद करके रखा हुआ है। इन लोगों ने उसी दिन से साजिश का जाल बुनना शुरू कर दिया था तारिक के ख़िलाफ़। जिस दिन शहजाद ने माँ को आकर इसकी दूसरी बीवी के मुतालिक बताया था, अब उन्होंने पूरा प्लान तैयार कर लिया था और इसी के मुताबिक अमल कर रही थी। बढ़ चढ़ कर उन्होंने माहीन की खातिर तवाज़ो की, खूब मोहब्बत जिताई। इसे अपने ढप का पाकर सारी बातें पूछ डाली। इसने तो कभी ऐसा माहौल, ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग नहीं देखे थे। उनका ये हुस्न सलूक देखकर हवाओं में उड़ने लगी। उनसे बढ़कर इसका कोई अपना नहीं था और वो इन्हें अपना निजात दहिंदा समझने लगी। मगर उसे ख़बर नहीं थी कि तारिक के वालिद और चचा के ताल्लुकात कशीदा थे। एक मकान के बेचने पर सारा झगड़ा खड़ा हो गया था। बकौल चची के बड़े भाई ने छोटी बेवा भावच को इसमें से हिस्सा नहीं दिया था, जबकि बड़े भाई के मुताबिक छोटी भावच का सरासर ये बहतान था। मालूम नहीं हकीकत क्या थी, मगर दिलों में मैल आ चुका था। बड़े भाई और इनके औलादें तो सब कुछ भूल भाल चुकी थी और उनकी औलाद ने इसको अपनी अना का मसला बना लिया था। उनकी ज़रा ज़रा सी गलतियों, कमज़ोरियों की तशहीर करके उन्हें शर्मिंदा और जलील करने की कोशिश करती थी। आना जाना तो अब भी था, मगर वो बात नहीं थी। और अब तो एक बहुत बड़ी कमज़ोरी चची के हाथ लग चुकी थी, सबूत के साथ। जबकि तारिक के छोटे भाई शारी की शादी की तारीख रखी जा चुकी थी और शादी के एहतमाम हो रहे थे। चची जान और बड़ी छोटी आपी को ये मौका नहायत मुनासिब लगा। उन्होंने माहीन को रुखसत करते वक्त एक खूबसूरत कामदार सूट, माँ इसकी मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ी और चप्पल के दिया और कहा कि शादी के दिन शहजाद तुम्हें यहाँ लेकर आएगा। ये सूट तुम उस दिन पहनना, हुमा तुम्हें तैयार कर देगी और फिर तुम हमारे साथ शादी हॉल में चलोगी। वहाँ तुम्हारी सौकन यानी तारिक की पहली बीवी भी होगी। हम तुम्हारा तारुफ तारिक की दूसरी बीवी की हैसियत से वहाँ सबसे कराएंगे और तारिक के वालिद को बताएंगे कि ये भी आपकी बहू है। इस तरह ख़ानदान भर को मालूम हो जाएगा कि तुम्हारा भी इस घर पर वही हक़ है जो अस्मा का है। फिर कोई तुम्हें वहाँ से नहीं निकाल सकेगा। हाय चाची, आप कितनी अच्छी हैं। माहीन ने उनके हाथ पकड़कर चूम लिए। अगर मैं यहाँ आ गई तमाम उम्र आपको दुआएं दूंगी। शहजादी से घर छोड़ाया। तारिक के फरिश्तों को भी खबर ना हो सकी कि अंदर ही अंदर कैसी बारूदी सुरंगें इसके घर तक बिछाई जा रही हैं, क्योंकि वो शादी के इंतज़ामात में लगा हुआ था। जबकि 2 दिन पहले वो माहीन से जाकर कह कर आया था कि भाई की शादी की वजह से मैं कुछ दिन नहीं आ सकूँगा। वलीमे के बाद आऊँगा, घबराना नहीं, घर में ताला लगा के रखना। और वो चुपचाप सर झुकाए सुनती रही। इसने कतई नहीं बताया कि वो किससे मिलकर आई है।
शादी का दिन आया तो शहजाद इसे दोपहर में आकर ले गया। सब बहनों ने इसके हाथ पाँव में मेहंदी लगाई। शाम को इसे वही कामदार ग्रीन सूट पहनाया, हाथ भर भर कर चूड़ियाँ पहनाई, इसका मेकअप किया, बाल बनाए, इसका जूड़ा बांधा और बेले का हाथ जूड़े में लपेट दिया और गुलाब सजा दिए। इसका रूप दमक उठा। ऐसा बनाव सिंगार तो तारिक से शादी के वक्त भी ना हुआ था। इसका कौन करता? इमरजेंसी में तो निकाह हुआ था। बड़ी आपी ने इसे आईने के सामने खड़ा कर दिया तो वो अपना रूप देखकर शर्मा गई और इसका दिल बेइख्तियार तारिक के सामने जाने के लिए हुमकने लगा। देखना माहीन, तुम्हारे सामने आज तारिक की बीवी अस्मा का रूप भी मान पड़ जाएगा। तारिक का तसव्वुर आते ही वो डर गई। आपी, कहीं मुझे वहाँ देखकर तारिक नाराज़ ना हो कि तुम यहाँ कैसे आ गई मेरी इजाज़त के बगैर। वो कुछ खौफज़दा सी नज़र आने लगी। अरे छोड़ो तारिक को, मैं तो इसे वो सुनाऊंगी कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। खामखा इसने तुम्हें कैदी बना कर रखा था। इसने तुमसे निकाह किया था, कोई तुम्हें भगाकर तो नहीं लाया था। इसने क्यों छुपाया? चलो ये काम हमने कर दिखाया। हुमा ने इसे गले से लगा लिया, तब इसे तसल्ली हो गई। फिर सारे के सारे जाकर टैक्सी में बैठ गए। बारात 1 घंटा लेट आई थी। आती हलचल मच गई, फूलों की पत्तियां निछावर की गई, हार डाले गए, फ्लैश लाइट के झमाके होने लगे। फिर निकाह हुआ और दुल्हन दूल्हा को स्टेज पर लाकर बिठा दिया गया। मूवी बनी और बोतलें खुलने लगी। इसी असना में हुमा आपी माहीन को सामने ले आई। कमाल ने तारिक को अलहदा ले जाकर सूरत हाल से आगाह कर दिया कि तुम्हारी चची ने शहजाद को भेजकर माहीन को बुलवाया था और इसे सजा बनाकर साथ लेकर आई हैं और सबसे इसका तारुफ तुम्हारी दूसरी बीवी की हैसियत से कराया जाएगा। पूरे ख़ानदान को मालूम हो जाएगा कि तुम्हारी दूसरी बीवी कौन है। तारिक ने बड़ी बेबसी से कमाल को देखा। तुम्हें किसने बताया ये सब कुछ? इसने सरगोशी में कहा। मुझे शहजाद पर कुछ शक हो गया था, मैंने इसे पकड़ा, इसने सब कुछ उगल दिया। अब तुम सामने मत आना, घर चले जाओ। इसे सुनकर तैश आ गया। अंदर जाकर आड़ में खड़ा हो गया। बड़ी आपी माहीन को लिए हर मेज़ पर जाकर तारुफ के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। वो हैरान रह गया। माहीन पहचानी नहीं जा रही थी। इसका ये रूप, सिंगार, भारी जोड़ा, ज्वेलरी, हार, फूल। मालूम होता है सारी तैयारियां चची जान ने महज मुझे रुस्वा करने के लिए की थी, वरना इन्हें मेरी पहली या दूसरी बीवी से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। खैर, मैं माहीन को अच्छी तरह समझूंगा। इस कमज़र्फ लड़की ने अपने आप को समझा क्या था? आसमान से उतरी हुई कोई चीज़। इसी तरह आड़ में होता हुआ बाहर निकल गया, फिर कहीं नज़र ना आया। सारे अरमान, तमाम खुशियाँ, देवर की शादी के लिए की गई तैयारियाँ झाग बनकर बैठ गईं। दिल में एक साथ कितने ही तीर सनसनाते हुए उतर गए। जब चची और बड़ी आपी ने उनकी मेज़ पर आकर अस्सलाम वालेकुम कहा, माहीन ने भी सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम कहकर सब ने निगाह उठाकर उसकी तरफ देखा। तुमने इन्हें पहचाना? ये माहीन हैं, तारिक की दूसरी बीवी। हुमा अस्मा और उनकी बहन भावज से मुखातिब थी। फिर वो अस्मा की माँ की तरफ देखकर बोली, भाई आंटी, ये मेरे पास आई थी कि मैं इन्हें आप लोगों से मिलाऊं। तारिक तो लाते नहीं थे, इसलिए मैं मिलाने ले आई। सबको जैसे सांप सूंघ गया। अस्मा की तो इसे देखकर आंखें पथरा सी गई थी। इनकी माँ, बहन और भावज के चेहरे धुआं धुआं से हो रहे थे। चची हंसती हुई आई और माहीन को दूसरी तरफ ले गई। तब अस्मा की अम्मी और बहन ने तारिक की आपा अर्शी से कहा, अर्शी, ये मेरी बच्ची के साथ कैसा मजाक किया है तारिक ने? हमारे साथ क्यों ये खेल खेला गया है? भरी महफिल में हमारे मुंह पे तमाचे मारे गए, हमें जलील किया गया। पहले क्यों ना बताया कि इसने एक और कर रखी है? हम ये तमाशा देखने ना आते। बुलाओ, कहाँ है तारिक? खाला जान, खुदा गवाह है कि हमें कुछ नहीं मालूम था, ना हमने आज तक इसकी शक्ल देखी थी। वो आ तो जाए, मैं खुद इससे पूछूंगी इसने ऐसा क्यों किया। तारिक कहीं नहीं मिला था, हर जगह ढूंढा जा रहा था। हम कैसे मान लें? तुम्हारे भाई ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया और तुम लोग बेखबर रहे। अस्मा की भावज और बहन हत्थे से उखड़ गई और अस्मा ने रोना शुरू कर दिया। अर्शी अपनी जगह चोर सी बन गई। इसके पास अपनी सफाई के लिए कोई लफ्ज़ नहीं था। माहीन के जीते जागते वजूद के साथ हर दलील बेमायनी हो गई थी। इसे चची पर सख्त गुस्सा आ रहा था और अपने भाई पर उनसे ज़्यादा। कम वक्त मुझे ही चुपके से बता देता, ये नौबत तो ना आती, मगर अब तो तीर कमान से निकल चुका था। वो इनकी कड़वी कसेली बातें सुनती रही और खामोश रही। चची ने सबसे पहले मेहमानों के साथ माहीन को घर पहुंचाया। इसके बाद दुल्हन के साथ और लोग आना शुरू हुए। माँ ने कहा, अस्मा, अपनी तैयारी कर ले, तुझे साथ लेकर जाऊंगी। अब या तो तेरी सौकन यहाँ रहेगी या तू रहेगी। मैं इनके बीच तो तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी।
اسما بھی تیار ہو گئی۔ اس کے بعد طارق آیا اور اسما کو اوپر ٹیرس میں لے کر چلا گیا۔ اسما مجھے سب کچھ پتہ چل گیا، میں شرمندہ ہوں۔ چچی اور ہما آپی نے میری دوسری بیوی کی حیثیت سے اس کا تعارف کروا کر سب کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو ٹارچر کیا، ان کی توہین کی۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ چچی نے ہم سے انتقام لیا ہے۔ یہ بھی نہیں سوچا انہوں نے کہ ہماری عزت ان کی عزت تھی۔ ہم سب ایک ہی باغ بلکہ ایک ہی درخت کے پھول ہیں۔ ہمارے اور ان کے بچوں کی رگوں میں ایک ہی خون دوڑ رہا ہے، پھر یہ تفریق کیوں؟ نفرت کیسی ہے؟ کیوں؟ کیا وہ آپ کی دوسری بیوی نہیں تھی؟ اس سے آپ نے نکاح نہیں کیا تھا؟ اسما نے تڑک کر پوچھا۔ ضرور تھی اسما، مگر وہ محض ایک حادثہ تھا، میری غلطی تھی۔ سراسر حماقت تھی، میں تمہیں بتانے والا تھا، دشمن اپنا وار چل گیا۔ میں کچھ نہیں جانتی، میرے گھر والوں کی بڑی بے عزتی ہوئی ہے، میرے اعتماد کو آپ نے کرچی کرچی کر دیا۔ میرا قصور کیا تھا طارق، جو آپ نے مجھے دو لخت کر دیا؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت، مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ اور خاندانی تھی؟ کیا کمی تھی مجھ میں؟ اسما رو پڑی۔ طارق نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا، بڑی درد مندی سے بولا۔ باخدا اسما، اس میں کوئی بات نہ تھی، تم ہر طرح سے اعلیٰ عرف ہو، تم میری رفیق ہو، شریک حیات ہو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ولیمہ ہو جانے دو، میں اسے ہمیشہ کے لیے یہاں سے بھیج دوں گا۔ ابھی میری بات مان لو، شادی کا گھر ہے، مجھ سے کوئی سوال نہ کرو، میں کوئی جواب نہ دے سکوں گا۔ وہ سخت پریشان تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ولیمے کے بعد میرے بھائی والدین کو مطمئن کر کے مجھے لے آئیے گا، یہ کہہ کر وہ اپنے آنسو پوچھتی چلی گئی۔ طارق اپنے ہونٹ چباتا رہ گیا۔ گھر کے ہر شخص کی نگاہوں میں سوال تھا، لیکن اس کے لب خاموش تھے۔ رات کو جب سب لوگ آرام کی غرض سے لیٹ بیٹھ گئے تو طارق غصے میں بھرا اوپر گیا، اور اس وقت ماہین نسبتاً ہلکے کپڑے پہنے اسما کی مسحری پر نیم دراز شاید طارق کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ بھاری کامدار گرین سوٹ جو اس نے شادی میں پہنا تھا صوفے پر پڑا تھا۔ وہ نہایت تیزی سے دھم دھم کرتا اندر چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ماہین گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ نیچے اترو، وہ دہاڑا۔ ماہین جلدی سے اتر کر نیچے کھڑی ہو گئی۔ طارق نے آگے بڑھ کر ایک زور کا تھپڑ اس کے منہ پہ مارا، وہ لہرا گئی۔ دوسرا تھپڑ اس سے زیادہ زور سے پڑا تو وہ گر پڑی اور سسکیاں لینے لگی۔ اس نے ماہین کو ایک جھٹکے سے اٹھا کر صوفے پر بٹھا دیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ بتاؤ، تم یہاں کس کی اجازت سے آئی تھی؟ تمہیں کون لایا تھا؟ بولو۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا۔ کچھ کہنے کے لیے زبان کھولی، مگر آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ وہ کچھ نہ بول سکی۔ مجھے معلوم ہے تمہارے پر لگ گئے ہیں، تم اڑنے لگی ہو، اپنی اوقات بھول گئیں۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہو گئی تھی، میں نے تمہاری مدد کی تھی، اور تمہاری اماں کے رونے، خوشامد کرنے اور ان کی تنہائی اور بے بسی دیکھ کر میں نے احمقانہ قدم اٹھا لیا تھا اور اپنا انسانی فرض ادا کیا تھا۔ تم نے میری رعایت اور ہمدردی سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہاری وجہ سے میرا گھر برباد ہو رہا ہے۔ حال میں ہماری چچی کی گوہر افشانیوں سے سب کو معلوم ہو گیا کہ میں نے تمہارے ساتھ دوسرا نکاح کیا ہے۔ تم میری بیوی ہو۔ لوگوں کی نظروں نے مجھے بتا دیا کہ میں کتنا برا انسان ہوں کہ اتنی خوبصورت، پڑھی لکھی، خاندانی بیوی کے ہوتے میں نے اس گندگی کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اسما کی ماں اسے اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ وہ سخت، ٹوٹا بکھرا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اس وقت ماہین نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ طارق بابو، مجھے معاف کر دو، وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے آنے سے یہاں اتنی گڑبڑ ہو جائے گی۔ نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ تمہاری چچی تمہارے خلاف ہیں، ورنہ میں نہ آتی۔ میں انہیں اپنا ہمدرد سمجھ کر جو کہتی گئیں وہ کرتی رہی، اس لیے کہ میں تمہارے گھر میں اپنی جگہ بنانا چاہتی تھی۔ تم جو چاہے میرے ساتھ سلوک کرو، مجھ سے ناراض مت ہونا۔ اب جو کہو گے وہ کروں گی۔ تم اپنی بیوی کو منا کر لے آؤ، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں سمجھتی ہوں کہ مخمل میں کبھی ٹاٹ کا پیون نہیں لگ سکتا۔ بدستور وہ غصے میں تھا۔ جاتے جاتے بولا، صبح جلدی تیار ہو جانا، آگے کوئی بات نہیں سنوں گا۔ ماہین کے سارے خواب چکناچور ہو گئے تھے۔ اس نے بھلا یہ باغ و بہار ماحول، اتنا اچھا گھر، ایسے لوگ، فیشنیبل، ہنستی مسکراتی خوبصورت لڑکیاں کہاں دیکھی تھی؟ یا اللہ، 2.5 دن کی بادشاہت دے کر مجھ سے نہ چھین، وہ سوچتی اور روتی سسکتی سو گئی۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر طارق نے آ کر اسے جگایا۔ اٹھو، منہ ہاتھ دھو کر چیزیں سمیٹو اور برقع اوڑھ کر نیچے آ جاؤ، مجھے جلدی واپس آنا ہے، ناشتہ گھر پر کر لینا۔ وہ جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ ماہین نے منہ ہاتھ دھویا، بالوں میں برش پھیرا، صوفے سے سوٹ اٹھا کر طے کیا، شاپر میں ڈالا۔
बुर्का ओढ़ा और नीचे उतर गई। तारिक की बड़ी बहन और बाप बैठे चाय पी रहे थे। अखबार खुला हुआ सामने रखा था। माहीन ने दोनों को सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, जीते रहो, आओ चाय पी लो। नहीं अब्बू, बस निकल जाएगी। तारिक अंदर से निकला और बाहर चला गया। वो भी इसके पीछे ही निकल गई। इसने क्वार्टर में इसे पहुंचा दिया और कहा कि घर में हर चीज़ मौजूद है, चाय नाश्ता खाना अपनी मर्ज़ी का बना लो, और कुछ नोट इसे देकर चला गया। जब से अस्मा बच्ची को लेकर घर गई थी, वह नन्ही उमेरा की जुदाई से सबसे ज़्यादा परेशान हो गया था। हर दम बुलबुल की तरह सारे घर में चहकती फिरती थी। अंदर बाहर सारे लोग, चाहे जिस उम्र के हों, इसके अंकल चाचू थे और सब इसके दोस्त थे। हाथों हाथ रहती थी। अब इसका दिल कहीं नहीं लगता था। घर में सब इसकी कमी महसूस कर रहे थे। नई दुल्हन के चौथी चाले शुरू हो गए थे। तारिक का दिल माहीन की तरफ से खट्टा हो गया था। ना वो यहाँ आई, न ये नक्शा बनता। चची और इनकी औलादें बड़ी कीना परवर थीं। लोगों की और ख़ुसूसन अपने ताया और तायाज़ाद बहन भाइयों की छोटी छोटी कमज़ोरियों और गलतियों को उछालना उनकी फितरत थी। सो उन्होंने जो किया अपनी फितरत के मुताबिक किया। ताया और मझली बहू अस्मा को लेने गई थी, मगर उनके वालिदैन और भाई का मुतालबा था कि जब तक माहीन को तलाक नहीं होगी हम अस्मा को नहीं भेजेंगे। सब ने उन्हें यकीन दिलाया कि ऐसा ही होगा, हम खुद भी यही चाहते हैं। मझली बहू ने अस्मा को समझाया, दुल्हन अपना घर बचाने के लिए औरत को बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इसका ये हाल हरगिज़ नहीं कि तुम मोर्चा छोड़कर घर बैठ जाओ। तब अस्मा ने सरगोशी में कहा, भाभी मैं इन नज़ाकतों को समझती हूँ। तारिक से नाराज़ी के बावजूद मैं अपना घर छोड़ना नहीं चाहती, मगर अम्मा और बड़े भैया की ज़िद के आगे मैं बेबस हूँ। आप आती रहिएगा, मैं बाजी से कहूँगी कि वो अम्मा और भैया को समझाएं। आखिर वो दोनों बेनीलो मुराम वापस आ गए। तब मगर नन्ही उमेरा को साथ लेते हुए वो दादा के गले का हार बन गई थी। तब बड़े भैया ने कहा, आप इसे ले जाएं, वरना रो रो कर जान खा लेगी, फिर इसे भेज दीजिएगा। तारिक की नींदें उड़ गई थी। खाना पीना भी वाज भी रह गया था। वो ऑफिस जाता, माहीन से मिले बगैर वापस आ जाता। 15 दिन गुजर चुके थे। एक दिन टहलता हुआ अपने क्वार्टर की तरफ निकल गया। इसी लम्हे इसने अपने क्वार्टर से एक अजनबी शख्स को निकलते देखा। वो एक नौजवान लड़का था। तारिक के कदम ठिठक गए। जब वो दूर चला गया, इसने भी अपने कदम मोड़ लिए। इसका जहन एकदम घूम गया था। इसने ऑफिस में आकर कमाल को फ़ोन किया। इसने बात की, कमाल तुम्हें कुछ पता है? आज मैंने एक जवान लड़के को अपने क्वार्टर से निकलते देखा था, तुम जानते हो? हाँ, मैंने भी इसे देखा था। जब माही ने एक दिन क्वार्टर से बाहर नल पर पानी भरने आई तो मैंने इस लड़के के मुतालिक पूछा तो इसने बताया कि वो कोई इसका अजीज़ है जो जेहलम से आया। बशीरा ने बेटी की खैरियत मालूम की थी और इसे बुलवाया था। इसका नाम अकबर है और शहर में कहीं ठहरा हुआ है। वो कई बार आ चुका है। तुमने भी तो इसकी खबर नहीं ली। आते हो तो वहाँ क्यों नहीं जाते? खुदा ना खास्ता कुछ उल्टा सीधा हो गया तो बात तुम्हारे ही ऊपर आएगी, क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है। या तो इसे तहफ़्फ़ुज़ दो या फिर 2 बोल लिख कर इसे जेहलम रवाना कर दो। तुम्हारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। तुम ठीक कहते हो कमाल, मैं यही सोच रहा हूँ। इसे तलाक़नामा थमा कर जेहलम रवाना कर दो। इसकी वजह से मेरी बीवी मैके चली गई। मेरे बाप भाई मुझसे सख्त नाराज़ हैं। कुछ तो मुझे करना है। इसने फ़ोन रख दिया और सोचने लगा कि 1 हफ़्ता और गुज़र गया। इसने तलाक़नामा तैयार करके वकील के दस्तखत करा लिए और महर के 5,000 रख कर वो लिफाफा लेकर जब क्वार्टर पहुंचा तो माहीन रेशमी जोड़ा पहने 16 सिंगार किए हंस हंस कर अकबर से बातें कर रही थी। अकबर की नज़रों में बड़ी वारफ्तगी थी। इसका हाथ माहीन के कंधे पर रखा हुआ था। तारिक कमरे के दरवाजे को धक्का देकर अंदर चला गया। दोनों इसे देखकर घबरा कर पलंग से खड़े हो गए। तारिक बाबू आ गए। माहीन अपने आप को संभाल कर हंसती हुई आगे बढ़ी। तारिक की आंखों में खून उतर आया। इसने ज़ब्त करके अकबर की तरफ देखा। ये कौन है? मैं जी माहीन के छोटे चाचा का बेटा हूँ अकबर। मुझे इसकी नानी ने भेजा इसे लेने। वो जी, आपो बशीरा बीमार है। बजाय माहीन के उसने जवाब दिया, तारिक बाबू मेरी माँ बीमार है, इसने मुझे बुलाया। मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। इतनी देर में इसने ख़ुद को बिल्कुल नॉर्मल कर लिया था। इसे खामोश देखकर फिर वो डलते डलते बोली, कुछ दिन के लिए चली जाऊं क्या? इसने उम्मीद भरी नज़रों से इसको देखा। तारिक ने कहा, कुछ दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए चली जाओ। तारिक ने लिफाफा इसके हाथ में थमा दिया। इसमें तुम्हारे महर के 5,000 और तलाक़नामा है। माहीन एकदम चुप होकर लिफाफा खोलने लगी। 5,000 के करारे नोट देखकर अकबर की आंखें चमक उठी।
फिर इसने दूसरा कागज़ खोला, देखा, लिफाफा बंद करके तारिक की तरफ बड़ी दुखी शाकी नज़रों से देखती रही। तारिक बाबू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। फिर इसकी आंखें डुबडुबा गईं। तुम्हारे लिए यही अच्छा था माहीन। तुम हमारे साथ ज़्यादा दिन नहीं चल सकती थी। हमारे यहाँ अपनी औरत के साथ कोई अजनबी मर्द देखा जाता है तो इसे गोली मार दी जाती है, मगर हमने तुम्हारे साथ बड़ी रियायत की है, वरना तुम्हारे साथ इस शख्स की लाश खून में डूबी हुई यहाँ नज़र आती। इस घर से सब कुछ ले जाओ, जो जी चाहे, मगर शाम तक क्वार्टर खाली हो जाना चाहिए। इसकी चाबी चौकीदार की बीवी को दे जाना। तेज़ी से मुड़ा, खुले दरवाजे से बाहर निकल गया। अब खड़ी क्या देख रही है, चल सामान बांध, सिवाय अलमारी और पलंग के सब कुछ ले चल। अकबर ने पलंग की चादर खींची तो माहीन ने इसका हाथ पकड़ लिया। बिस्तर रहने दे बाबू, यहाँ आकर आराम करता है वो। माहीन ने चादर फिर बिछा दी, तकिए रख दिए। ओहो, बड़ा ख्याल है बाबू का। मैं जो इतनी दूर से आया हूँ तेरे लिए, मेरा कुछ ख्याल नहीं? मुझे छोड़कर भाग खड़ी हुई, शहरी बाबू से शादी कर ली। बेवफा ना हो कोई तेरे जैसा। हंस हंस कर इसे चिढ़ा रहा था। इसने एक चुप साध रखी थी, इसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अकबर ने कहकहा लगाया, मगर बाबू था समझदार। इसने हमारे लिए रास्ता साफ कर दिया। वो अपनी रौ में कहता जा रहा था और सामान बांधता जा रहा था, मगर वो ख्यालों में दूर तक चली गई, जहाँ माजी करीब की पथरीली कांटों भरी गुजरगाहें, ऊंची नीची पगडंडियाँ थीं। हाय मेरा नसीब, अब फिर वही शब व रोज़ लकड़ियाँ चुनकर जंगल से लाना, गाय भैंसों की गंदगी समेटना, उपले थापना, नहर से पानी लाना और कच्चे पक्के झोंपड़ों में रहकर एक एक चीज़ को तरसना। वो बेखबरी भी कितनी बड़ी नेमत थी। दुनिया के हुस्न और ज़िंदगी का कदर कीमत से नाचना। कम में शिकवा, न ज़्यादा की हविस। ना वो यहाँ आती, ना तारिक बाबू से मिलता। फिर इसकी निगाहों में हालात की फ़िल्म चलती रही, और शादी के हंगामों के बाद तो जैसे ज़िंदगी के सारे हंगामे ही सल्ट पड़ गए। इसे देश निकाला मिल गया। काश आगही का ये लम्हा आने से पहले इसकी सांसें थम जाती, दिल बंद हो जाता। माहीन सोचती जाती, चीज़ें समेटती जाती और आंसू पोंछती जाती। क्यों रो रही है? अकबर को गुस्सा आ गया। शुक्र कर आज़ादी की कोई कीमत अदा न करनी पड़ी, आसानी से मिल गई, वरना मैं तो बेमौत मारा जाता। फिर वो इसके पास आया और मोहब्बत से गुंधे लफ्ज़ों में कहा, बाबू जैसा घर मकान तो मैं तुझे नहीं दे सकता, मगर दिल का पूरा जहान तेरे नाम कर दूंगा। वहाँ की मलका होगी। चल अब उठ जा, शाबाश। इसने इसका हाथ प्यार से थामा तो वो खड़ी हो गई। तारिक का बड़ा सा बैग इसने पलंग के नीचे से खींचा। इसमें माहीन ने शादी के सारे कपड़े, चाची का दिया हुआ भारी काम का ग्रीन सूट, ज्वेलरी बॉक्स, सैंडल, चप्पल, ब्यूटी बॉक्स रख कर इसकी जिप बंद कर दी। बाकी बर्तन वगैरह सौदा लाने वाले थैले में रख लिए। हत्ता के चाय, चीनी, चावल, मसाला और घी के डब्बे, आटा वगैरह भी थैले में ठूंस लिए। इसके बाद अकबर ने अलमारी खोलकर इसका जायज़ा लिया। तारिक के 2-3 सूट टंगे नजर आए। वो इनकी तरफ लपका। माहीन ने आगे बढ़कर झट अलमारी बंद कर दी और गुस्से में बोली, शर्म नहीं आती तुझे दूसरों के माल पर नियत ख़राब करते हुए? अरे झल्ली, ये सूट मेरे काम आ जाते। मैं भी कुछ देर के लिए कोट पैंट पहनकर बाबू बन जाता। वो मुस्कुराया। हाँ बन जाता बाबू। माहीन ने टेढ़ी नज़र से इसको देखा। ये तेरे किस काम आएंगे? तू इतना छोटा, वो इतना लंबा ऊंचा, तो इसके सामने बच्चा लगता है। जा अब जाकर कोई रिक्शा टैक्सी लेकर आ। थक कर पलंग पर बैठ गई। अच्छा जा रहा हूँ, नाराज़ क्यों होती है? वो हंसता हुआ बाहर निकल गया और इसे फिर तारिक याद आ गया। दिल ने कहा, तारिक एक बेरहम इंसान था। नहीं, वो बहुत अच्छा था, मैं ही इसके काबिल ना थी। यही कुछ सोचते हुए वो लोग 2 घंटे कबल स्टेशन पहुंच गए थे। इसने बुर्का ओढ़ा हुआ था, वहीं उन्होंने कुछ खाया पिया। फिर माहीन ने कुछ नोट दिए कि जाकर जेहलम के 2 टिकट लेकर आ, बाकी पैसे मुझे लाकर देना। इसने पर्स बंद करके रख लिया। अच्छा बेगम साहिबा, जो हुक्म, खादिम हाजिर है। वो हंसता हुआ चला गया। तारिक ने तलाकनामे की फ़ोटो कापी अस्मा के भाई को भिजवा दी और कहा, अगर तस्दीक करना चाहो तो कचहरी जाकर मुनव्वर अली एडवोकेट से मालूम कर लो। 1 हफ्ते के बाद ताया जान बहू को जाकर घर ले आए। मैंने तुमसे कहा था ना कि महज एक हादसा था। बाहर निकलने वाले मर्दों को नित नए हादसों, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। हादसे ट्रैफिक के भी हो सकते हैं, जहाज़ भी क्रैश हो जाता है, ट्रेनें भी पटरी से उतर जाती हैं, और हादसे वो भी होते हैं जहां इंसान की अकल गुंग हो जाती है, सोचें बदल जाती हैं और सिमतें खो जाती हैं, मगर वक्ती और लम्हाती तौर पर।
मैं भी कुछ इसी किस्म के हादसे से दो चार हो गया था अस्मा, जबकि हर बात मैंने तुम पर वाज़े कर दी थी, मगर तुमने यकीन नहीं किया। एक बार की हर दलील मुस्तरद करती। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो तुम शादी के भरे हुए घर से इस तरह उठकर अपनी माँ के साथ न चली जाती। तुम्हें ज़िंदगी मेरे साथ गुजारनी थी, अपने भाई या माँ के साथ। ये नहीं सोचा तुमने कि बावफा औरत अपने घर और शौहर की खातिर दुनिया को ठुकरा देती है। तुम कैसी बीवी थी, हर कदम पर मुझे शिकस्त देती चली गई। तुम्हारे घर के हर फर्द ने मुझ पर अदालतें खोलती, मुझे इश्तहारी मुजरिम बना डाला। मैं सबसे अपना मुंह छुपाता फिरता रहा। तलाक तो मुझे से देनी ही थी, मगर मैंने सोच लिया था कि जब तक तुम खुद नहीं आओगी मैं तुम्हें लेने नहीं जाऊंगा। अस्मा, अगर कभी मुझसे इससे बड़ी कोई गलती सरजद हो गई तो तुम मेरा क्या साथ दोगी? औरों के साथ तो तुम भी मुझे पत्थर मारोगी। इस रात तारिक बेहद बिखरा हुआ था, इसे अस्मा की तरफ से शक पहुंचा था। अस्मा ने तारिक के दोनों हाथ थाम कर अपनी आंखों से लगा दिया। आप मेरे मालिक, मेरे सरताज हैं। खुदा गवाह है कि मैं भी बहुत मजबूर थी। इस वाक़ये ने अम्मी का बीपी हाई कर दिया था। उनके दिल की हरकत दुगर्दुम हो गई थी। घर जाते ही बड़े भैया डॉक्टर को लेकर आए। इसने दवा दी, इंजेक्शन लगाया, तब जाकर वो सोई थी, वरना रास्ते भर वो रोती आई थी। ऐसी हालत में अगर मैं इनकार कर देती, यकीनन उन्हें हार्ट अटैक हो जाता। मुझे आप पर यकीन था, मैं आपकी हैसियत समझती थी, मगर वो मौका ऐसा नहीं था। अब आप जो जी चाहे सज़ा दे दीजिए, मैं सर झुका दूंगी, मेरी वफा पे शक न कीजिए। अस्मा इसके हाथों पर अपनी पेशानी झुकाकर रो पड़ी। बस इस जगह आकर वो हार जाता था। किसी के आंसू, ख़ुसूसन औरत के आंसू, बर्दाश्त ही न कर सकता था। दिल का इतना नर्म, मुरव्वत में इतना पागल था कि माहीन के आंसू, इसकी माँ का रोना, तड़पना इसे देखा ना गया, और जज्बात में आकर वो कुछ कर बैठा जो किसी तरह दुरुस्त नहीं था। इसने अस्मा को तो किसी न किसी तरह मना लिया था, मगर वो अपने ज़मीर से आज भी शर्मिंदा था कि इसने अपने इख्तियार और ताकत का गलत इस्तेमाल किया था। अल्लाह इसे माफ़ फरमाए। ये खूबसूरत सा नावल तो पहुँचा अपने इख्तिताम तक। इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।